Today is our day 7, Loving Yourself, a review of your first week. Today, you look at how far you have come and how much you have accomplished towards breaking free of your old beliefs and discovering future possibilities. Congratulations, dear ones. You have made it through your first week of mirror work. I'm so proud of you for sticking with this course and practicing your mirror work these past 7 days. Mirror work takes time, and I'm so glad you have given yourself these 21 days to learn it. The more you practice, the easier it will be. It's okay if you still feel a bit silly or uncomfortable when you look into your mirror, saying, I love you. I really love you to ourselves is hard for most of us at first. It may take several weeks or even a month to be entirely comfortable saying that these loving words to yourself. But once you can say them with more ease, you will see positive changes in your life. Like, trust me, these 21 days will not be easy. चीजें आएंगी बीच में, बहुत सारी चीजें हडल बनेंगी, सिली लगेगा कि हम अपने आप को कैसे आई लव यू बोल सकते हैं, या ये टाइम भी निकालना अपने लिए, अपने बिजी शेड्यूल में से अपने खुद के लिए। कई बार ऐसा आएगा कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं, ये चीजें कोई काम नहीं करती हैं, या अ, जो सेशंस भी हैं उसमें अटेंड करके क्या ही हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, अगर ये चीजें वर्क नहीं करती होती तो ये बुक ही नहीं होती, और हम अपने लिए अपने आप को ही वक्त दे रहे हैं। तो कुछ चीजों को अनकंडीशनली बस कर लेना ही, लाइक कुछ चीजें हम यूं ही कर लेनी चाहिए, और हम खुद को अनकंडीशनली लव देने का मतलब यही है कि हम ये जो भी 30 मिनट 40 मिनट हम अपने लिए निकाल पा रहे हैं। ओवर द पास्ट 7 days, you have invited your mirror to become your friend and constant companion. You have learned how it will help you become much more aware of what you say and do. You have taken time to listen to your self talk and to practice your positive affirmation. ये मेरे लिए, लाइक फॉर मी, इट्स वेरी अवेकनिंग 7 days। बहुत बार इन 7 दिनों में ऐसा हुआ जब मैंने नेगेटिव बोला, सोचा, बट फटाफट से मैंने अपने आप को रीवायर किया कि नहीं, क्योंकि ये बुक बार बार मुझे याद आ रही थी, और बार बार इट्स लाइक अ रीवायरिंग। थॉट आता है, नेगेटिव थॉट भी आता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी आया, सेल्फ डाउट भी आया, सेल्फ बॉडी शेमिंग भी आया, लेकिन एवरी टाइम, लाइक जैसे ही वो थॉट आया, उस थॉट को शिफ्ट करा, और इट्स लाइक हैबिट 21 डेज में शायद वो इनबिल्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे वो विल स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ। अगेन आई वांट टू emphasize that mirror work is a true act of love, one of the most loving gift you can give yourself. Each day that you practice your mirror work, you may fall in love with yourself a little bit more. Yes, it's very very true कि अगर 1% भी मुझे ये करके अपने और करीब जाने का मौका मिल रहा है, अपने से और ज्यादा प्यार करने का मौका मिल रहा है, तो हमने अभी तक, लाइक आई हैव स्टडी टिल एमबीए, वो जो किताबों ने कभी भी खुद के करीब आने का के बारे में नहीं सिखाया था। बट अगर ये एक बुक मुझे मेरे करीब लेके आ रही है, तो व्हाट्स द हार्म इन डूइंग योर 1% लव, मतलब रोज अपने आप से और थोड़ा करीब और थोड़ा करीब और थोड़ा करीब आ रहे हैं। क्योंकि पता नहीं कितने जन्म और कितने साल, कितने अ, वक्त लगा है अपने से दूर होने में, खुद से डिस्कनेक्ट होने में, तो खुद से कनेक्ट होने में भी टाइम लगेगा। Each day that you practice your mirror work, you may fall in love with yourself a little bit more. The best way to love yourself is to release all the junk from your past, the self judgment, the old story that hold you back.
You can live in the present moment. We have all gotten into the habit of believing negative statements we have heard since childhood. When you can turn these negative affirmations into positive statements and practice them looking into your mirror, you can let go of some of these past heart hurts and move on. Each day that you do your mirror work, you are clearing out the layers of the past. Each time you say the affirmation in the mirror, you are removing another block in this layer. It has taken years for these layers to form. यही बात बुक भी कह रही है कि पता नहीं कितने साल लगे हैं. लाइक इट्स टेकन years to layer up this self doubt, self criticism. हमें मालूम ही नहीं है कि कितने सालों से, कितने जन्मों से, कहाँ कहाँ से हम अपने ऑरा में या अपने सोल के अंदर वूंड्स लेके चल रहे हैं. तो अभी तो हमें ये प्रैक्टिस डे वन डे टू करते करते कुछ चीजें सामने आ रही हैं, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अम, अंदर सप्रेस्ड होती हैं, जो हमें पता भी नहीं होती कि हमारे अंदर वो सब चीजें चल रही हैं. इट हैज टेकन ईयर टू दीज लेयर्स टू फॉर्म, built of blocks like the bricks that make up a large wall. It will take time to break through these layers, but you can start with one block. Each time you remove one block or one layer, you allow more light, more love to shine through. Like it's like a onion प्याज की तरह उस पे परतें लगी हुई हैं और आप वो लेयर को उतारते चले जाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, वो लास्ट में ना जो एंड प्रोडक्ट निकल के आने वाला है, दैट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. जो आप खुद है, जो आप खुद एक लाइट बनते जा रहे हैं, अपने आप को हल्का करते जा रहे हैं, अपने पास्ट को, अपने ग्रजेस को, अपनी कंप्लेंट्स को, अपने सेल्फ डाउट को, अपने क्रिटिज्म को, चीजों को धीरे 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 लेयर डाउन करते 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 यू फेल्ट लाइक वेरी लाइट. As you begin to believe the positive affirmation you say in your mirror, more of this beautiful love will break through the walls of your past. No matter what the problem is, the best way to resolve it is by loving yourself. If every now and then you hear the voice of your inner critics picking on you for something or making a negative remark, it's okay. You always have your friends or companion, your mirror, to turn to. Look yourself deeply into the eyes and say, I'm worth loving and keep up the good work. Like अभी अगर मैं देखूं, अभी इस सेशन में भी अगर आज मेरे साथ कोई भी नहीं है बैठा, स्टिल आई कैन लव माई सेल्फ. मैं इस कैमरे में देख के अपने आप को ये बोल सकती हूँ, आई लव यू एंड आई एम वर्दी. आई नो आई एम वर्दी, आई एम डूइंग माई वर्क, I don't need any validation or anyone to be in this session. कोई हो या ना हो, अगर एक इंसान भी इस सेशन में है तो भी मैं अपना 100% देने वाली हूँ, और एक भी नहीं है तो भी ये सेशन शायद मेरे लिए है. मैं अपने आप को जरा सा भी लेस वर्दी या कम नहीं समझती हूँ. आई लव माई सेल्फ एंड आई नो आई एम डूइंग द ग्रेट वर्क, आई एम डूइंग द बेस्ट वर्क, आई एम डूइंग मिरर वर्क जो हर कोई नहीं करेगा. हर पूरी लाइक इट्स नॉट अ नॉर्मल वर्क. Every now and then you hear the voice of your inner critic picking on you for something or making a negative remark. It is okay. You always have your friend and companion, your mirror, to turn to. Look yourself deeply into those eyes and say, I am worthy loving, and keep up the good work. Let's affirm. I celebrate this week of loving myself with mirror work. I now move into the space of consciousness in which I am willing to see myself differently. Wow. Like इस पूरा हफ्ता मैंने अपने आप को प्यार किया. मैं अपनी आंखों में आंखें डालकर अपने आप को आई लव यू बोल पाई. मैं अपने आप को बार बार नीचे गिरने से बार बार ऊपर उठा पाई.
मैंने इस पूरे एक हफ्ता अपने आप को बार बार याद दिलाया कि यू आर वर्दी, ज्योति, यू आर वर्दी, यू लव योर सेल्फ, एंड दैट इज दी, आई थिंक, मैं अपने आप को इससे ब्यूटीफुल गिफ्ट कोई नहीं दे सकती हूँ जहां आई डोंट नीड आउटर वैलिडेशन। लाइक अगर इससे पहले मेरे पास अगर कुछ ऐसा होता कि मेरे चाहिए जो मेरे साथ सेशन करे या मेरे पास बैठे, मेरी बात सुने, बट अभी मुझे लगता है कि मैं मेरे को टाइम दे रही हूँ, मेरे साथ आई लव यू बोल रही हूँ, मुझे एक अप 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 करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए है, मतलब आई डोंट नीड एनी वन फॉर माई ओन हीलिंग। तो आज का जो एक्सरसाइज है मिरर वर्क की, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बाथरूम मिरर, लुक इन टू योर आईज एंड से दीज अफर्मेशन: आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग मिरर वर्क। यस, लाइक मैं अभी अपनी आंखों में देख के बोल सकती हूँ, आई लव यू ज्योति, आई रियली रियली लव यू, I am proud of you doing this mirror work, and I will continue doing this mirror work till 21 days, no matter what, no matter what. I am proud of you, Jyoti. Repeat this affirmation 10 times, adding your name. I love you. I really love you. I really love you. I am proud of you for doing your mirror work. Look at your forehead and imagine that you are pressing a button there and ejecting a disk of your old beliefs and negative thoughts that has been playing in your head. Take your hand and imagine that you are pulling that disk out of your head and throwing it away. Now look deeply into your eyes and imagine that you are making a new CD with a positive affirmation. Okay, I am ejecting my old CD drive that is negative, delete, and I am ejecting, putting new disk, new CD with positive affirmation. I am willing to let go. I am worth loving. I am perfect just the way I am. The power is within you. Your day 7 journaling exercise. Take out your journal and open it to the first exercise you did on day 1. तो डे 1 पे हमने किया था द फीलिंग एंड ऑब्जर्वेशन यू जॉट डाउन आफ्टर योर मिरर वर्क ऑन डे 1। लाइक फॉर डे 1, फॉर मी इट वाज लाइक कि सेल्फ डाउट था उस टाइम पर, जब मुझे लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, मेरा ये 21 days, विल आई बी एबल टू बी डिसिप्लिन्ड टू डू दिस एक्टिविटी कंटिन्यूअसली, और कोई आएगा या नहीं आएगा, मैं अकेले करूंगी नहीं करूंगी, कैसे करूंगी, टाइम निकल निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। बट ट्रस्ट मी, टाइम आगे पीछे हुआ लेकिन प्रैक्टिस नहीं छूट रही है। और मैं अभी at day 7 पे आई कैन फील कि आई एम मोर डिसिप्लिन, I am more committed to my own goal, and I am proud of myself कि मैं ये कंटिन्यू आज भी कर पा रही हूँ। टाइम का चैलेंज आया, टाइम शिफ्ट किया मैंने, बट ये हो गया और हो रहा है और होता रहेगा टिल 21 days। On new page, write down your feelings and observation after the first week of doing your mirror work. Are the exercise getting easier? Are you feeling more comfortable looking into the mirror? Yes, I'm feeling more easy with myself. I'm feeling more confident with myself. And even अभी इस मीटिंग से पहले I have a business pitch to my some international clients. That was like मैं बहुत easily बोल पा रही थी। अदरवाइज मैं शायद थोड़ा सा अटकती, बट आई वॉज लाइक, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है और वो मेरे अंदर से आ रहा था। मुझे वो पिच पिच नहीं लग रही थी, वो मेरे अंदर की ट्रू वॉइस थी जो मैं एवरीडे अपने आप को ऑलरेडी बोल रही थी। तो वो लव, मेरा जो मिशन है टू स्प्रेड सेल्फ लव, अब वो बताने के लिए या मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ता, वो सीधा जाता है और जो दिल की बात दिल तक अपने आप पहुंच जाती है।
अब वो क्यों पहुंच पा रही है? क्योंकि जब मेरे अंदर अगर कोई चीज होगी तो ही मैं किसी को दे भी पाऊंगी। माई इनर वर्ल्ड इज माई आउटर रिफ्लेक्शन। तो मेरे अंदर वो लव, मैं मेरे अंदर वो लव है मेरे खुद के लिए, तो ही मैं आज किसी और को वो लव दे पा रही हूँ। तो राइट डाउन वेयर यू आर हैविंग द मोस्ट सक्सेस with your mirror work. Write down where you are having the most difficulty. For me, like success for me is I can do, बट हाँ थोड़ा सा अगर मैं लैक कर रही हूँ तो है लाइक इट्स कंटिन्यूएशन प्रोसेस। तो वो कंटिन्यूएशन प्रोसेस पे मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, बिकॉज बहुत सारी चीजें बीच में सेशंस हो जाते हैं या और चीजें होती हैं, बट स्टिल आई एम एबल टू मैनेज समहाउ एंड इट्स हैपनिंग। Create new affirmation to help you in those areas where you are having blocks. So my block was earlier when I started this book, was like I was not overcoming through my past uh, parental wound, or I was not able to forgive some acts जो मेरे पेरेंट्स के द्वारा कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं भूल नहीं पा रही थी। स्टिल थ्रू ऑल दी 7 डेज वो सारी चीजें सरफेस पे भी आई, बाहर भी आई, बट मैंने थ्रू थैंक्स टू दिस बुक जो मैं धीरे धीरे उसको मैंने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसा शायद मैं पहले रिएक्ट करती। आई एम लाइक मोर काम, मोर पीसफुल, और दुखा हो, हर्ट भी हुआ, ट्रिगर भी हुआ, लेकिन माय रिएक्शन वाज डिफरेंट दिस टाइम। Your heart thought for day 7. All my experiences are right for me. We have been going through doors since the moment we were born. That was big door and big change. We have been through many doors since then. We came into this lifetime equipped with everything we need in order to live fully and richly. We have all the wisdom and knowledge we need. We have all the abilities and talents we need. We have all the love we need. Life is here to support us and take care of us. We need to know and trust that it is so. दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल लाइन। लाइक मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि जब आपने किसी जगह पे जन्म लिया है, वेन यू टेक अ बर्थ, आपने जिस घर में जन्म लिया है, जिस मदर के वूम से यू यू हैव लाइक इनकारनेट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। यू हैव अ सोल प्लान। तो आपकी जो डिलीवरी के चार्जेस जो भी लगे, वो डिलीवरी किस तरीके से होगी, क्या एक्सपेंसेस आएंगे, वो ऑलरेडी इवन बिफोर द डिलीवरी व्हेन यू आर इन योर मदर्स वूम, उनकी जो भी टेक केयर होगी या जो भी चीजें उनकी लाइफ में होंगी, उतने एक्सपेंसेस ऑलरेडी उनको प्रोवाइड कराए गए। फिर हॉस्पिटल में जो खर्चा होगा वो भी उनके पास ऑलरेडी था। फिर आपकी एजुकेशन का आपके पेरेंट्स को ऑलरेडी वो फंड्स दिए गए। फिर हायर एजुकेशन का आप ये देखेंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ये लगेगा कि यार अगला ये एक्सपेंस आने वाला है, लेकिन आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। बट वो पता नहीं कहाँ से कैसे वो एक्सपेंसेस आपके पास इनकम हो जाएगी। एक्सपेंस होने से पहले आपके पास वो इनकम सॉर्ट हो चुकी होती है। बिकॉज जो भी चीजें आपको लाइफ में रिक्वायर्ड है, आप अर्थ पे आने से पहले अपना सोल प्लान लेके आए हुए हैं। वो हर एक चीज, चाहे आपकी घर हो, आपका पैसा हो, आपका लव रिलेशन हो, आपके लेसन्स हो, आपके एक्सपीरियंसेस हो, प्लस हो कि माइनस हो, वो सब कुछ ऑलरेडी आपका सोल प्लान डिस्टाइंड है। आपको हर एक चीज वो मिलेगी जो भी चीज आप डिजर्व करते हैं। बट आप यू हैव टू बी इन दैट वाइब्रेशन, यू हैव टू बी इन पॉजिटिव जोन कि यस आई डिजर्व दैट लव, आई डिजर्व दैट abundance, दैट जॉय, दैट हैप्पीनेस। वो लेंगे या नहीं लेंगे वो आपके ऊपर है। गॉड ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने या प्लैनेट अर्थ ने कुछ भी चीज को लैक में नहीं रखा। एवरीथिंग इज इन abundance. Doors are constantly closing and opening. And if we stay centered in ourselves,
then we will be always be safe, no matter which doorway we pass through. Even when we pass through the last doorway on this planet, it is not the end. It is simply the beginning of another new adventure. Trust that it is all right to experience change. Today is a new day. We will have many wonderful new experiences. We love, we are safe. हर पल अपने आप को ये बोलना कि आई एम सेफ इवन when you die your soul don't die, your body dies. आपकी बॉडी छूटती है, आपकी आत्मा नहीं मर रही है। तो जहां मरने का भी डर खत्म हो जाता है, तो चेंज से डर लगता ही नहीं है। हर चीज जो भी चेंज हो रही है, आपका घर चेंज हो रहा है, आपका पार्टनर चेंज हो गया, आपका रिलेशनशिप चेंज हो गया, आपके अराउंड लोग बदल गए, जो भी चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, वो आपकी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ के लिए हो रहा है। अगर आप नर्सरी में थे तो चेंज करा तो आप नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन हुए, आपके टीचर चेंज हो गए, आपके सब्जेक्ट चेंज हो गए, आपकी आपके फ्रेंड्स शायद चेंज हो गए। बट अगर वो चेंज नहीं करते तो शायद आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे ही नहीं। तो अभी चाहे हमें नर्सरी की टीचर्स बहुत पसंद थी, लेकिन क्या हम आज भी नर्सरी में ही बैठना चाहेंगे? हम आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे? तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, वो समझ जाइए कि अब नेक्स्ट लेवल ग्रोथ का टाइम आ चुका है। बी रेडी फॉर द चेंज। जहां आप चेंज से रिजिड रिजिड हो जाएंगे, वहीं पे आपको हर्ट होगा और वहीं आप वुंड होंगे और वहीं पे यूनिवर्स आपको लेसन देगा। तो डे 7 मेडिटेशन, स्पिरिट एम आई, we are the only ones who can save the world. As we band together for the common cause, we find the answer. We must always remember that there is a part of us that is far more than our body. देखिए, जो मैं बात बोली है वही बात अभी इसमें आ रही है। पूरे चैप्टर में ऐसा ही हो रहा है, मैं कुछ कह रही हूँ और वो बाद में चैप्टर में यही आ रहा है। Far more than our personalities, far more than our disease, far more than our past, there is a part of us that is more than our relationship. Like अगर एक बात ये समझ में आ जाएगी ना कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस आइडेंटिटी, मैं ज्योति नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो इनफाइनाइट है, जो इस प्लैनेट अर्थ पे एक एक्सपीरियंस ले आने आई है। वी आर नॉट वी आर नॉट ह्यूमन experiencing spirituality. We are already spirits experiencing ह्यूमन फॉर्म। हम ऑलरेडी आत्मा है जो इंसानी एक्सपीरियंस लेने आए हुए हैं अर्थ पे। हम अर्थ बीइंग्स नहीं है जो हम स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करेंगे। हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, बस यहाँ आने के बाद हम डुअलिटी वर्ड में फंस गए हैं, मैट्रिक्स में फंस गए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेटर ये अर्थी अर्धी जो भी चीजें हैं, मेटरलिस्टिक चीजें हैं, उसको अट्रैक्ट मत करो। वो सब कुछ, अगर अर्थ पे जो भी चीजें हैं, अगर आप यहाँ एक्सपीरियंस लेने आए हो तो वो सब कुछ एक्सपीरियंस लो। अगर पृथ्वी पे लग्जरी लिविंग है तो जस्ट अट्रैक्ट, वो आप लीजिए। देयर इज अ पार्ट ऑफ अस दैट इज मोर देन रिलेशनशिप। द वेरी कोर ऑफ अस इज प्योर स्पिरिट, eternal. It always has been and always will be. We were here to love ourselves and to love one another. By doing this, we will find the answer so that we can heal ourselves and the planet. जब तक आप ये बात को नहीं समझेंगे, या जब तक मैं ये बात को नहीं समझी थी कि मैं भी एक सोल हूं और मैं अर्थ पे कुछ एक्सपीरियंस करने आई हूं, तब तक मेरा दूसरों के साथ ग्रजेस भी थे, कंप्लेंट्स भी थी, एंगर भी था, फियर भी था, गिल्ट भी था, शेम भी था, ऑल लोअर फ्रिक्वेंसीज। मेरे पास वो सब कुछ था। लेकिन लाइक जैसे जैसे मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, वो रूट चक्रा से फियर, गिल्ट, सेल्फ डाउट, एंगर, हर बार वो सरफेस पे आता है और वो मुझे रिलीज करते 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 वो अनियन की तरह वो स्किन्स निकलती चली जा रही हैं। इट्स नॉट कि आई एम टोटली परफेक्ट, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन, इट्स अ प्रोसेस। आई एम इन अ जर्नी, आई एम इन अ प्रोसेस। वी ऑल आर इन प्रोसेस। और जब ये बात समझ में आ जाती है कि हम सब एक प्रोसेस में ही हैं, तो
अपने जो कार्मिक्स लोग हैं, जो हमें ट्रिगर कर चुके हैं या कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें वूंड्स मिले हैं, जिनके साथ हमारा पास्ट लाइफ कोई कर्मा है, या इस लाइफ में भी हमें जिन्होंने बहुत हर्ट किया, डोमेस्टिक वायलेंस या बहुत ही ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस हमारा जिनके साथ रहा, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे एक्स हस्बैंड, या जो भी आपके अराउंड आपको ट्रिगर किया, जिसने भी, वो भी एक सोल है। और हम उन्हें माफ कर पाते हैं क्योंकि वो हमारा ही लेसन है या वो उनका लेसन है। और हाँ, माफ करना किसी को इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फॉरगिव समवन, फॉरगिव आप किसी को तब कर पाते हैं जब फॉरगिव पहले खुद को करते हैं। अगर हम खुद को, मैं फॉरगिव नहीं कर पाती, तो मैं किसी और को फॉरगिव कभी नहीं कर पाती। बट हाँ, वो टाइम लगता है चीजों में। और we are going through extraordinary times. All sorts of things are changing. We may not even know the depth of the problems, yet we are swimming as best we can. This too shall pass. We will find solutions. We connect on spiritual level, and on the level of spirits, we are all one. We are free, and so it is. Like even अभी आप देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे इतनी नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं, इतने जैसे प्लेन क्रैश हो गया, मर्डर हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, बट वो सब भी तो सोल ही है। एवरीवन इज सोल। और अर्थ शिफ्ट हो रही है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लाइक न्यू न्यू अर्थ फॉर्म हो रही है, जहां पर हम लोग गलत चीजों को हटा रहे हैं। मतलब मदर अर्थ खुद भी अपनी हीलिंग कर रही है। मदर अर्थ खुद अपने आप को रीजनरेट कर रही है। अर्थ खुद अपने आप में गलत चीजों को हटा के और नई चीजों को फॉर्म करने में लगी है। तो एवरी टाइम, लाइक जब भी कुछ नया, नई रचना होती है, नया कुछ क्रिएशन होती है, तो वो पुराना टूटता है, पूरी आइडेंटिटी आपकी टूटती है, तब जाके आप कुछ नया बनते हो। और जब आप नया बनते हो, उसमें भी एवरी टाइम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इवन लाइक अगर आप कोई नया बिल्डिंग बना रहे हो, तो अगर वो बिल्डिंग पुरानी, बहुत पुरानी हो चुकी है और वो पूरी तरीके से अंदर तक खत्म है बिल्डिंग, तो आपको पहले पूरी डिमोलिश करनी पड़ेगी। और फिर न्यू उसको, न्यू जो रूट्स रख के, नींवें रख के, और उस पे फिर नया काम करके, और धीरे 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 आप उसको एक नई बिल्डिंग का फॉर्म दे सकते हो। और उसके बाद भी आपको उसकी मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी। तो इट्स लाइक एवरी सोल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। ये हम लाइट बीइंग है, लाइट से आए हैं और लाइट में ही वापस जाना है। तो ये जितने भी लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं, फियर, गिल्ट, शेम, सेल्फ डाउट, जो भी ये लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं, ये हमें हैवी कर रही हैं, और इसी वजह से हम अर्थ पे अटक गए हैं। हम, अगर हमें लाइट होना है, जो भी ग्रजेस हैं, जजमेंट्स हैं अपने लिए, दूसरे के लिए, वो सबको रिलीज करते हुए ही हम हल्के होते हुए ही लाइट में वापस जाना है। अब वो इस जन्म में जाएंगे, अगले जन्मों में जाएंगे, या कब जाएंगे, ये नहीं पता। जितना ज्यादा हम अपने ऊपर अपना इनर वर्क करते जाएंगे, उतना ज्यादा हम हल्के होते 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 हम एनलाइटमेंट की तरफ, मोक्ष की तरफ जा सकेंगे। मैं कह रही हूँ, मोक्ष की भी बात है, पता नहीं मोक्ष होता भी है कि नहीं। एटलीस्ट आप आज यहाँ हैं, तो अपने अंदर ही एक कामनेस, एक पीस, एक हैप्पीनेस, एक जॉय को फील करना है। लाइक हमारा यहीं पे हेवन है और यहीं हेल है। पता नहीं आगे जाके ऐसा कोई कंसेप्ट है भी कि नहीं, कि मरने के बाद कुछ होता ही नहीं है। हमें नहीं पता, मैं तो मरी नहीं हूं अभी तक, तो मुझे नहीं पता कि वहां पे मतलब स्वर्ग या नरक कुछ मिलने भी वाला है कि नहीं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरा स्वर्ग मैं यही बना सकूं। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ टू द कोर, टू द बेस्ट ऑफ माई टाइम। तो अगर मुझे वो टाइम यहाँ अपने आप को बैठ के आई लव यू बोलने में देना है, तो मैं दिल से, दिल खोल के अपने आप को आई लव यू बोलूंगी।
और वही टाइम अगर मुझे फिजिकल फिटनेस के लिए, मुझे स्विमिंग करना है, मुझे जिम करना है, मुझे जो भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मैं उस टाइम को अपना बेस्ट दूंगी। अगर मुझे नेचर में जाना है तो मैं उसको नेचर में अपने टाइम को बेस्ट दूंगी। लाइक मेरे मेरे को अपने आप को कैसे खुश रखना है। हाँ, बीच बीच में लोज आते हैं, ट्रॉमास आते हैं, सरफेस पे आती हैं चीजें, बट कितनी जल्दी हम वापस अपने आप को लेके आ पाते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक ये जो बुक है ये हमें बहुत बहुत हेल्प कर रही है। मुझे तो ये बुक, it's like every time, this is for my third time, and every time this is like magic for me. And I keep repeating this book बार 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 बार, till मिरर मेरे सामने हमेशा रहेगा, जब तक मेरे घर में मिरर रहेगा, और टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल डू दिस मिरर वर्क। एंड दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो गिफ्ट मैं अपने आप को दे सकती हूँ। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही। और अफर्मेशंस आंख बंद करके हम अपने आप को देंगे, आई लव यू, आई एम सो सो प्राउड ऑफ यू फॉर मेकिंग दिस 7 days, टेकिंग आउट टाइम फॉर माई ओन सेल्फ। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। थैंक यू ज्योति, अपने आप को ये 7 दिन देने के लिए। और अगले 14 दिन आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ to be disciplined, to be in this session. Thank you, Jyoti. Thank you so much. Hi, Preeti ji. How are you? I'm okay. How are you? Thank you. I'm good. I'm good. You are able to attend. Yes. Yeah, Our this practice. time is better. This This time time is is better. 12 is better. Because for me, it's noon time. So this is okay. better. This suits me. Good. Like I'm doing this session, but देखो जिसको आना है, they can come. और किसी को भी नहीं आना, मैंने जब ये स्टार्ट किया था आई वॉज लाइक कि मेरा टाइम उस टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू लाइक डू माई टाइम टेबल। तो मेरा 8:30 वाला इज लाइक माई पीक टाइम फॉर माई पर्सनल सेशंस। उसी टाइम पे Mm-hmm. मेरे सेशंस होते हैं, 7:30 8:30 वाले टाइम पे, यू नो। तो दैट Yeah. वाज डिफिकल्ट फॉर मी कि टू बी इन अ लाइक डिसिप्लिन कैसे कर पाऊंगी मैं। दो आई Mm-hmm. टुक चैलेंज कि मैनेज करते हैं कुछ आगे पीछे करके, बट समहाउ डिडंट हैपन, लाइक मैं नहीं कर पा रही उस चीज को मैनेज। तो आई शिफ्टेड दिस कि 9:30 करते हैं, ताकि मेरा पूरा दिन का शेड्यूल ना वो हो गए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुक ना सच में लाइक इट्स अ मैजिक। और It अगर is. मैं मेरे लिए भी कर पा रही हूँ ना, तो इट्स लाइक इट्स नॉट बी कि मैं अभी कोच हूँ या मैं सेशंस लेती हूँ तो ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। Mm-hmm. एवरी डे, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये सब पहली बार सुन रही हूँ। एवरी Right. डे Right. अपने आप को आई लव यू बोल रही हूँ, लाइक होता है Mm. ना, आप प्यार में दोबारा से प्यार में पड़ रहे हो। Right. Right. I have started this book with my son yesterday because I got the like physical copy because I have it's online, but online like Kindle edition is not good, so I got a copy from the Amazon. So it's good. So we started from the day one yesterday because with my son I restarted from the day one. ग्रेट। तो यस, Yeah. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एज अ मदर, स्पेशली एज अ मदर, Mm-hmm. अगर आप खुद से प्यार, व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ ना, ट्रस्ट मी, यू आर लाइक, आप हील होते हैं ना, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी। व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, योर पीपल अराउंड यू विल स्टार्ट लविंग यू। Mm-hmm. दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लाइक बहुत सारी चीजें अभी भी आएंगी, इट्स नॉट कि हम रातों रात एकदम से वो हो गए, बिल्कुल ही हम पॉजिटिव हो गए हर टाइम के लिए। Mm-hmm. बट इवन आप जब ये बुक प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, लाइक प्रैक्टिस क्यों बोल रहे हैं इसको, इसीलिए तो कह रहे हैं क्योंकि बिकॉज इट टेक्स टाइम, तभी प्रैक्टिस है।
Right. तो बट इसको करो, और लाइक अभी मुझे लग रहा था कि सेशन में कोई नहीं है, कैसे करूं, अकेली हूं, या वी आर लाइक 3 पीपल, बट मैंने इतना सोचा कि अगर कोई भी नहीं कर रहा है ना, तो शायद ये मेरे लिए है। No, no, और I am doing it, and my son आई started, नो, आई and नो, I will ask my husband to do it too. And we started like in the proper way. Like I made a journal for him, and we wrote day one, and I wrote myself the day one, because I didn't have books, so at that time when you started, so like I am on the day 6 with you, but I am day 7 with you, but I am on the day one with my family. So it's good, and we are journaling it too. ग्रेट। Yes. तो दिस इज व्हाट आई रियली वांट, कि अगर मेरे इस बुक से और मेरे रोज ये करने से, एक तो मेरा, मैं तो अपने लिए कर ही रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग फॉर एनीवन एल्स, आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ। बट अगर Right. मेरे करने से मेरे साथ अगर किसी एक को भी फर्क पड़ता है, आप कर रहे हैं, अलका जी कर रहे हैं, कोई और, आप अपने लाइक आप अपने बेटे को करा रहे हैं, अपने फैमिली में करा रहे हैं, बच्चे आगे किसी और को कराएंगे, तो देखिए हाउ ब्यूटीफुल, लाइक वी आर क्रिएटिंग अ न्यू अर्थ, वी आर क्रिएटिंग अ, लाइक वी आर नॉट डूइंग लाइक छोटी मोटी चीज। तो Right. इतना बड़ा रोल है ये, और ये इजी नहीं होगा, Mm-hmm. लाइक एवरी डे कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म लाइव, it's a big challenge for me and for you, for everyone, like अलका जी was like Yes. उनके आई ईयर में प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो बट एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे रिकॉर्डिंग से करिए, चाहे खुद से करिए, चाहे मेरे साथ Mm-hmm. करिए, बट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, लाइक रियली अपने आप को ऐसे कर लो और बहुत Yes, प्यार yes, हग कर yes, लो। yes. एंड ट्वेंटी No, वन I डेज am so thankful to you. I wanted to write long messages, but it was so many things, like crazily busy. So, but I am doing it, and I will, at the end, I will show you my journal, because we have started journaling it day one, day two. So, yeah. Hmm. नॉट अबाउट मी, I will आपको share with मुझे you. कुछ मुझे नहीं दिखाना है या बताना है, बट Yes, आई एम yes. सो No, I want to show you the changes. या आई रियली Yes, वांट कि सबको yes. फायदा हो सब, और इसमें फायदा भी नहीं, लाइक अनकंडीशनल लव ही तो करना है खुद को, हमें इससे Yes. अटैच भी, रिजल्ट से भी क्यों ही अटैच होना है कि मुझे क्या Mm-hmm. मिलेगा ये करके, कुछ Right. टाइम अपने आप को ही दे देते हैं ना। हम यहाँ कोई Mm-hmm. गॉसिप नहीं कर रहे हैं, कोई बैक बिचिंग नहीं कर रहे हैं, कोई नेगेटिव चीज नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट लविंग, अपने आप को आई लव यू बोलने आ रहे हैं। तो Right. जस्ट इट्स लाइक अ डेट अपने खुद के साथ, Mm-hmm. तो उसी को मजा ले लो, जरूरी नहीं है उसमें कोई रिजल्ट ही आए। और Mm. एक दूसरे से लाइक मेरे को इतना ज्यादा, यू 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 आर लाइक मोटिवेशन फॉर मी, अलका जी इज लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी, एवरीवन, लाइक जो भी शो अप हो रहा है इज लाइक मोटिवेशन फॉर मी, मैं आपकी वजह से आज फिर चल पाऊंगी। No, it's like we are here for each other. So या it's a good डेफिनेटली। initiative you take, and it's going to like it's I'm like not looking for any like materialistic things benefits. I'm just the because entire thought process is changing. So that's the benefit I'm looking forward, because the entire, like when you become more aware of what's going inside you, and when you get to know you, so it's that's a change I'm looking forward. एवरी टाइम नहीं तो हम दूसरे से एक्सपेक्टेशंस करते हैं ना, कि हमारे बच्चे हमें Right, प्यार right. करे, हमारे हस्बैंड हमें Mm-hmm. लव यू बोले, या हमारे पेरेंट्स हमारी सुने, या हम वी जस्ट वांट टू लाइक वांट वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड, वी ऑलवेज वांट सम एप्रिसिएशन फ्रॉम आउटसाइड, कि हम अच्छी बीवी हैं, अच्छी बेटी हैं, अच्छी बहू हैं, अच्छी बहन है, या इवन अभी मैं ये सोचूं कि मैं अच्छी कोच हूँ या मैं अच्छी हीलर हूँ, चाहिए नहीं, Mm-hmm. Mm. क्योंकि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो आई एम डूइंग माई बेस्ट। Right, तो वो right. वैलिडेशन वाला वो बैरियर ही खत्म हो जाता है, दैट इज वेरी Mm. ब्लॉकेज, जहां आप कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हो, वो Mm. लिमिटेड बिलीव, वो फ्रीडम नहीं है। Right. मुझे फ्रीडम वाला करना है, मैं कर रही हूँ ये, बस मैं कर रही हूँ, वो कब Mm. जाएगा, कहाँ जाएगा, किस तक जाएगा, इट्स लाइक अन इनफाइनाइट। अब ये रिकॉर्डिंग किस तक पहुंचनी है, कहाँ तक पहुंचनी है, आई डोंट नो। Mm. तो इट्स लाइक आजादी, खुद की आजादी। Right. आज मेरा स्टेटस पड़ा था,
मेरे लाइक वो मेरी शायरी निकल के आई, पता नहीं अंदर से कहीं से। नो, बट आई कैन डू राइट नाउ। नहीं, मेरे पे तो नहीं दिखा रहा आपका स्टेटस। फेसबुक? इट्स ऑन फेसबुक। व्हाट्सएप पे। हाँ, तो नो। बैठे बैठे एक थॉट आया, किसी को बांध सकूं ये हक तो नहीं मेरा, खुद को हम्म। आजाद कर लूं ये फैसला लिया है मैंने। राइट। तो मुझे किसी को बांधना ही नहीं है, ना हम्म। सेशंस में ना कहीं भी, क्योंकि इट्स अबाउट माय ओन फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ लाइक, हम सेल्फ जजमेंट कर रहे हैं या सेल्फ कंप्लेन कर रहे हैं या किसी और को जज कर रहे हैं, किसी और को कंप्लेन कर रहे हैं, इवन फॉर हम्म। आवर किड्स। हम बहुत जगह उनको बताने की कोशिश करते हैं ये कर लो वो कर लो। एज अ हम्म। पेरेंट, एज अ मदर स्पेशली, हम रुक नहीं पाते हैं उनको बताने से। और जब हम्म। आपको बहुत नॉलेज हो चुकी होती है, लाइक अभी मैं उसको जो जो पढ़ रही होती हूँ मैं उसे सिखा रही होती हूँ, या मैं उसको बोलती हूँ चल ये मिरर बुक वो कर ले, बट आप सिर्फ बता सकते हो, करना या नहीं करना दैट लेट देम डिसाइड। तो अभी आप अगर बच्चे के साथ करो तो बैठ के प्यार से करो, अगर वो करना चाहे तो डोंट हम्म। फोर्स। या। क्योंकि हम देखो हम किस एज में आके कर रहे हैं, हम्म। और उनके शायद उतने वुंड्स है भी नहीं जितने हमारे हैं, हम्म। तो शायद उनको नीड उतनी हो भी ना। बट अगर दे आर रेडी, वो खुद से करना चाहे तो करना, अदरवाइज जबरदस्ती खाना मुंह में मत डालना किसी को। राइट। एंड आई एम ग्लैड कि आप ये कर रहे हो। नो, थैंक यू टू यू। चलो, कीप शेयरिंग इन द ग्रुप, ताकि यस। बाकी लोग को भी हेल्प मिले। यस।